Hello everyone, welcome back to the TSU Bootcamp organized by Skepsis and GFT. Uh, uh, Myself Riya Gupta, and I will be taking a session on Stack and Key. In today's session, we will mainly focus on Stack and problem solving. One thing I will ask you all is that be free to ask any questions. Do not hesitate. So that's it from my end. I will next go to. I will start with teaching stuff. Yes. So today's main agenda is stack data structure, its implementation, and problem solving. I will. Yeah. So okay. Uh, One second, guys. Okay. So, okay, before I start with Stack, I would want to ask you a question like, can anyone tell me any of the disadvantages of array? Anyone? Do stay interactive. कभी कुछ session से सीख पाओगे. So, I would want you all to speak up. Anyone. कुछ बोलो guys. Anyone? क्या सो गए? Hello. गाइस अगर आंसर देना है तो लाइक माइक ऑन करके बोलो क्योंकि वो शायद चैट ना पढ़ पाए क्योंकि वो दूसरा वो ओपन करके रखी है ना तो हाँ, माइक I ऑन am करके facing बोलो this. हैंड रेस करो तो वो पूछेगी तो ऐसे आंसर दे Anyone. Interactive. Okay, Srijita, I can see you. See your hands. You can answer. We एक्चुअली can वो only लोग sequence. मैसेज में आंसर दे रहे लाइक कॉल Oh, मैसेजेस in में chat. हाँ हाँ थोड़ा चेक कर लो Wait, I उसको will see that. Or it's better if someone is answering that also. Srijita, you were telling something. Actually, I was saying that we can only sequentially access the element. Sorry, you were not audible. Could you repeat? We can only sequentially access the element. Okay. Any more answers? I will open the chat and we'll see. Text size, yes, that's right. The long time complexity range from my okay. Anyone else want to try? Anyone. बोलो guys. Interact नहीं करोगे नहीं समझ आएगा बच्चों को भी. Okay, so I will answer. See, like it's a thing. Why were we introduced to such data structures like? Why were we introduced to data structures like stack, queue, linked list? In सबका need ही क्यों था? It is also similar to array. It stores element, but array is also there for us to store elements and all. And we often use the arrays in so many programs. But the thing with array is that it has got fixed size. Whenever like you declare an array, you always have to give some size to it. Say for example, I'm declaring an array of size. Like I will have to definitely give the size, but in my program, I want to access. I don't know like how like what my program will need, how much space will that array occupy, or what my requirement is. I don't know that initially. Even if I don't know, I will have to give that size. That is like, say for example, I have declared an array of size 10, but later on in my program, I get to know like somehow I want to allocate more elements in the array, say 20 elements. But I cannot do that in that same array, no matter how badly my program demands it. I will have to take a new array
will have to go off that size of 20, because later on I got to know that I need more space. So I will so later on I got to know that I need more space. So again, I will have to shift those elements that I had already stored in one of my arrays. I will have to shift those elements to new array and then allocate the new elements that I want to enter. But this thing we can be, neglected if we use data structures like stack too. They are very, flexible. You don't have to, declare their size from beforehand. The it size मतलब उसका size अपने आप होता है, एडजस्ट होता है. लाइक जैसे तुम एलिमेंट्स डालोगे या पॉप करोगे निकालोगे उसके हिसाब से द स्टैक फिक्सेस इट, मतलब द स्टैक fixes itself, like adjusts itself. So that is the thing with why we need stack, and why how stack helps out in overcoming the drawbacks of like these data array. Main reason is that size, you can, it's very flexible, it's not rigid like array की एक बार तुमने size define कर दिया तो तुमको उसी में काम करना हो. तो ऐसे भी हो सकता है ना, लाइक देखो इफ आई चलो मान लेते हैं कि हम पहले से डिफाइन कर लिए एक बहुत ही बड़ा एरे साइज से 100, बट इन माय प्रोग्राम आई ओनली वांट टू स्टोर 10 एलिमेंट्स इन द एरे. तो वो अगेन इट्स अ वेस्ट ऑफ मेमोरी, बिकॉज वंस यू डिक्लेयर एन एरे ऑफ साइज 100, वो स्पेस एरे ब्लॉक कर लेता है तुम्हारे मेमोरी में, like it's blocked, and you cannot manipulate it later on in the program, no matter how badly you want it. But the once you have allotted a size to it, it's fixed. But stack queue in सबके केस में क्या होता है कि it is not fixed, it is flexible and you can access it in your own way. So that is what. So let me tell you what stack is. Stack is mainly it's like a container which helps to store element in a particular fashion. You can add elements to it. You can remove elements from it from one way only. It follows LIFO principle, that is last in first out. Last in first out by okay, let me give you an example, very common example, like a stack of books. We keep one book on top of that, another book on top of that, another book. But when we want to say we want to access the last book that we had kept, like the first book that we had kept, so for us to access that book we will have to first remove the top books, like the third book that I had added, then the second one, then the first one, then only I can access to that book. I hope I am able to like you can understand. By definition, stack is a linear data structure that follows LIFO principle, last in first out. This means like that the last element that you added to the stack is the first element that can be removed. Till now, anyone is having any question, you can ask me. Like clear हुआ what stack is and why we use stack इंस्टेड ऑफ एरे. एरे भी तो वही काम करता है ना कि एलिमेंट स्टोर करता है, बट वही है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता उतना, काफी रिजिड होता है. एक बार एक स्पेस अलॉट हो गया तुम्हारे मेमोरी में एरे के लिए तो वो नहीं चेंज हो सकता है, नो मैटर तुम मतलब कितना भी चाहो. तो या दैट इज ऑल अबाउट स्टैक का डेफिनेशन. एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन और नहीं समझ आया कुछ ऐसा कुछ? एनीवन? बोलो बोलो, रिएक्ट रिएक्ट. इन्फो फिर से समझा देंगे. हाँ श्योर. इन्फो लाइक स्टैक का ही तो. ओके, स्टैक इज वेरी सिंपल. एक कंटेनर जैसे समझो विच इज अलॉटेड इन योर मेमोरी. उसका साइज इज नॉट फिक्स्ड. तुम जब भी एलिमेंट्स डालोगे तभी वो मेमोरी वो स्पेस तुम्हारे मेमोरी में लेगा, एंड जब निकालोगे लाइक एलिमेंट्स हटा दिए तो वो स्पेस हट जाता है. मतलब लाइक इट इज नॉट ब्लॉक बाई वंस. लाइक ऐसे होता है ना एरे में, क्या होता है वो ब्लॉक कर लेता है वंस यू डिक्लेयर इट, बट स्टैक में ऐसा नहीं है. इफ यू एड एन एलिमेंट इट स्टेज, इफ यू रिमूव तो वो स्पेस भी खाली हो जाता है. यू कैन ऐड न्यू एलिमेंट्स टू इट. ऑल्सो उसमें यही एक पर्टिकुलर फैशन में तुम उसमें एलिमेंट्स ऐड और रिमूव कर सकते हो, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. से तुमने एलिमेंट्स ऐड किया और लिसन बुक्स वाले एग्जाम्पल काफी कॉमन.
you add one, you keep one book on top of that another, like 3 बुक रखा, ठीक है, से मैथ्स के ऊपर फिजिक्स के ऊपर केमिस्ट्री. अब तुमको मान लो मैथ्स वाले बुक को लेना है, तो तुम उसको तभी ले सकते हो वंस यू रिमूव द टॉप मोस्ट बुक्स, दैट इज तुम्हारा केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, फिर उसके बाद जो लास्ट वाला बाई सेट फिजिक्स, हाँ तो वो फिजिक्स. तो उसको एक्सेस करने के लिए पहले ऊपर वाले एलिमेंट्स, ऐसा नहीं कि तुम बीच से निकाल सकते हो, इट इज फिक्स्ड, मतलब इट हैज दिस रूल, लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है. Ritra, I hope I am clear to you now. Ritra Das. Okay, good. So that is what stack is all about. Now the key operations that are involved with stack data structure is your push, pop, peek, empty. Push क्या करता है? For you to add elements to the stack. Pop is for you to remove the elements. Go by meaning, मतलब simple है, ऐसा कोई हाथी घोड़ा नहीं है. Push pop, and then pop is for you to remove the elements. Peek is तो तुम्हारे stack का जो topmost element होगा, that is the last element that you have added in the stack, उसको तुम access कर पाओगे. And is empty is to check कि तुम्हारे stack में कोई elements है या नहीं है. That's if these are the key operations, like main functions that we often use while accessing the stack. So with that, these are the operations. Next. Okay, this one is for you to, like, why do we need stack data structure? Because of the drawbacks: fixed size, memory allocation. I hope this is also clear. Now, okay, this is what I had to tell. That by definition, this is what I had for stack. Now I will next move to implementation, and we will go for time complexity. Till now, anyone having any doubt? Anyone? Thumbs up दे दो if everything is clear. Thumbs up. Okay. बाकी सब सो गए. गाइस तुम लोग थोड़ा रिएक्ट करो तो उसको समझ में आएगा कि समझ रहे हो कि नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है. थोड़ा रिएक्ट कर दो सबको. Okay. So, okay, let me start with implementation. This is the folder that I already have created. File, stack, implementation. I will write the code. Just once go through it, then I will explain it to you all line by line, or else I will try to explain it. I will create the class for stack. Say my stack. Yes. The variables that I will need. There are many ways by which you can implement this stack. You can use queue, you can use array, you can use linked list to implement stack. Because you all are not done with queue and linked list, so I will implement using array. अब पूछोगे कि आपने तो disadvantage of array से start किया था, but there are also many ways to implement. अभी implementation के लिए I'm using array. So yeah, int array say size. देखो array use कर रहा है तो मेरे को size predefine करना पड़ रहा है. Also, मेरा सारा. These are private because I will only use it in the class my stack. बाकी functions I will do it public with one now.
screen यार मुझे। My stack constructor, ओके मेरा कोड पहले से ही आ रहा है। My stack is your constructor. I will initialize top with -1. This is push function void type because I will use it to add elements. कुछ मेरे को return तो करना नहीं है. Push is उसका काम क्या है? For you to add elements in the stack, right? So return type is void. Since I'm adding the element, I will pass a parameter, say text. Now I will have to check अभी एक बार के लिए देख लो. I'm writing the code and I will explain it to you. Like when if top is this, top is this, okay. Should I explain? Wait, write the code. Now I am writing pop function. For pop function, I will return the value that will be pop. So I will keep the return type as int pop. Well, then check if the stack is empty, make it pop is equals -1. Then see out stack give up. In text is storing. Okay. Just hold on, let me write this code. I will explain. Peak also. Since I already have the code. So then I will write you. Main. So before I write the main, let me explain what are the functions that I have written. So okay, I'm starting from the first line. Okay, I have created a class myStack private variables that is your array, which will store elements. And top is for you to keep the pointer, like the position where you will add and remove. It is you to keep the track of the last element that you have added. This is your myStack constructor. Top is equal to -1. Why -1? Because initially your array is empty. There are no elements. So keeping it -1. Because once you add elements, according to that, your top is what? Basically the position of the element, last element. Right now you don't have any elements, so it is -1. Your then next comes push function. You will this we use to add elements. Void type because we are not returning anything, we are simply adding elements to the array. So I have passed the parameter in x, the element that you want to add to your stack. Here I have given this condition, that is the size constraint that we have, that is top. If top, like say I have declared the array of size 1000, so we very well know that it can store only 1000 elements. So for that
reason I have given this condition, because if say I try to add more than 1,000 elements, I will get the stack overflow, क्योंकि स्पेस ही नहीं है। आपने डिफाइन करके रखा है साइज 1,000, तो उससे ज्यादा आप एलिमेंट्स नहीं ऐड कर सकते हो। For that reason, this is the condition that you have to check before adding elements to the array. So this is what it is, like this condition, then top plus plus, because now since I'm adding an element, I will have to give that position like now, say now initially top is -1, okay? So when I'm pushing, top will now become 0, top plus plus, then at array at 0, first element that you're adding, array of like at 0 position will be x, the element that you are passing. Else will come when you exceed the size, when you try more elements to the array with like more than 1,000 elements. This is about your pop function, push function. Next we have your, anyone having doubt with push function or any questions related to it? Yeah, am I clear? Anyone? See the thumbs up. Okay, cool. Next is your pop function. Pop is what? You need to remove the element from the container where you were storing the elements. Pop, how it works? You can only remove the elements from the topmost point of the stack of the container. सिर्फ ऊपर से आपको तक जो लास्ट एलिमेंट ऐड किया वही होगा फर्स्ट एलिमेंट फॉर यू टू रिमूव। तो इनिशियली आई एम चेकिंग इफ टॉप इज इक्वल टू -1। ये क्यों यूज किया? क्योंकि मेरे को पहले चेक करना होगा ना, अगर मेरा स्टैक ही एम्प्टी है तो कुछ एलिमेंट्स तो इट विल नॉट रिटर्न। सो फॉर दैट I have checked top is equal to -1, then you will have stack underflow, वो stack में कुछ है ही नहीं, and it will simply return you -1. And अगर there are elements, it will go store नहीं, हाँ, store the topmost element in a variable. वेरिएबल क्यों लिया है? क्योंकि आप अगर सीधा लिख देते return array of top माइनस माइनस, तो वो आपको एरर देता, बिकॉज हाँ ये इसको ऐसे रिमूव करो, वो एरर देता। हाँ, सो फॉर दैट यू विल स्टोर द टॉप मोस्ट एलिमेंट एक जगह स्टोर कर लो, फिर टॉप को माइनस माइनस कर देना और फिर रिटर्न कर देना एक्स जो तुम्हारा स्टोर करके रखा है, और जो टॉप है वो भी अपडेट हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। लाइक अभी मान लो से यू हैव एडेड 5 एलिमेंट्स इन योर स्टैक, now you have removed the 5th element, so you are storing the 5th element in say variable x, then उस टॉप का जो पोजीशन इज reduced to 4, फिर x को रिटर्न कर देना, जो तुम्हारा एलिमेंट रिमूव हुआ है वो पॉप्ड आउट हो जाएगा। That is your pop function. Then next comes peak. Peak again similar to pop ही होता है, but still we have defined it in stack. Here you will like same चीज है एकदम, just it's here, इधर पे ये है कि you don't remove the element, you just get to know कि हाँ मेरा topmost element क्या है। That is why you cannot, इधर पे you cannot directly return array of top minus minus, and इधर पे we have returned array of top। पीक और पॉप में मेन डिफरेंस क्या यही है कि तुम्हारा लाइक जो पॉप है उधर पे तुम रिमूव कर रहे हो, और पीक में बस ये जस्टिफाई कर रहे हो कि मेरा स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है। दैट इज द की डिफरेंस, और बाकी फंक्शनैलिटी सेम है। boolean is empty is for you to check ये तुम्हारा स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। दैट इज अगेन इजी, सेम चीज ही है। अगर टॉप -1 हुआ तो मतलब कि कोई एलिमेंट्स है नहीं तुम्हारे स्टैक में, इट विल रिटर्न ट्रू, एंड नेक्स्ट अगर हुआ तो इट विल रिटर्न फॉल्स। आई होप आई एम क्लियर विद द फंक्शंस। एनीवन हैविंग एनी डाउट?
fonts. Anyone? देखो ये तुम लोग को थोड़ा बोरिंग लग सकता है, but it is what it is. Later half में we will solve good questions. So not an issue. Or anyone react? Are these all? No, not recursive. No, not at all. I will just write the main function. These are the fun. No, it depends how you call it. These are not recursive. I will just call these functions. You will understand. First, like if you're done. Function. I hope everyone is clear with the functions. Okay, stand. The functions which I have defined over here. Next, I will call and will do. It's clear. Okay. So again, I have it all written. Okay, so for me to access these functions, first let me create the object for my stack. Say S. Anyone give me numbers, which numbers you want to push in the stack. 45. Okay, next. Oh, wow. All बोलो यार. 23. Okay, maybe I will 78. I got someone said 78. I'll stop push. Wait. 45, 39. कुछ भी पुश कर सकते हो. 23 and 72 11 बस काफी है और मैं तो ऐसे push 11 और एक बार रन करके दिखा देती हूँ. पुश किया, अभी हमने सिर्फ ऐड किया एलिमेंट्स. ओके, a bit slow. अच्छा, ओके, प्रिंट नहीं कर रहा है क्या वो? ओ अच्छा, वी आर नॉट प्रिंटिंग. पुश हो चुका है. वेट, इट विल बी क्लियर. इट इज डन. क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि हमने प्रिंट नहीं किया. सी पुश फंक्शन में वी हैव जस्ट एडेड इट्स देयर इन योर एरे, बट आपने प्रिंट नहीं किया तो इट इज ठीक है. डू यू वांट मी टू शो इट? अभी तक प्रिंट किया. कहाँ प्रिंट किया? नहीं. हाँ, अभी नहीं. हाँ, नहीं किया उसने प्रिंट, क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम एरे नहीं डिस्प्ले कर रहे हैं. वेट, लेट मी. हम लोग पॉप यूज कर रहे हैं. अच्छा, डू यू वांट मी टू शो प्रिंट हो रहा है? फिर मेरे को एरे रन करना है और बेटर पॉप दिखाते हो बिकॉज पॉप में दीज आर द एलिमेंट्स दैट यू हैव पुश. तो तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 45, फिर उसके ऊपर 39, फिर उसके ऊपर 23, फिर उसके ऊपर 72, फिर उसके बाद 11. सो अभी मान लो सी आउट. हाँ, पॉप. तो अगर मैं पॉप करूँ तो विच एलिमेंट विल यू पीपल एक्सपेक्ट? एनीवन? आई एम नॉट रनिंग द कोड अभी. Anyone? 11. Okay, let's see. See, you're getting 11. Say I want now peak. So which element will I get? Anyone? Gold. We've all got it. No, not 45. No, Aritra, you're getting it wrong. Not 45 because this is the first element that you added. But as I said, that will be the last element that you will be able to access because it's a stack. Like आप 45 लिखा, फिर उसके ऊपर 39 गया, फिर उसके ऊपर 23 गया, फिर उसके ऊपर 72 गया, फिर उसके ऊपर 11 गया. Isn't stack
top to bottom. The topmost element is your 11 na, as of now, because that was the last element you pushed. Aritra, did you get what I was trying to tell? 45 is the first element that you had pushed in your stack. Stack is top to bottom, but the topmost element is 11 because that was the last one. The first and yes, the first है वो bottom. So okay, हाँ, where was I? S dot P का क्या आएगा? Anyone? I think I got the response. 7. Let's see. See 72. So you all get na what how it's working. Push pop also empty का भी मैं run कर देती हूँ so that you understand. Stack का भी empty नहीं है तो we are expecting false 0. In CPP we get 0 for false. So this is all. और कोई फंक्शन जो चलाना चाहो anyone? कोई भी फंक्शन का नाम ले लो. Push pop peak is empty. Anyone? बोलो. Pop, okay. एक ही पॉप करना है कि और करना है? ऑल पॉप सारा ओके ठीक है चलो सारा पॉप कर देते हैं. स्टैक क्या हाँ कितना एलिमेंट्स चला 1 2 3 है 1 2 let's check. Stack under flow. Why? Because हमने सारा एलिमेंट्स पॉप कर दिया था. देखो 5 टाइम पॉप लिखा है 1 2 3 4 5. सिंगल लाइन एक्सप्रेशन में मल्टीपल पॉप कर सकते हैं. और फॉर यू मल्टीपल पॉप को लूप चलाना पड़ेगा बिकॉज वो एक बार जब पॉप करोगे तो एक ही एलिमेंट पॉप होगा. लाइक तुम सिर्फ पॉप लिख दोगे तो वो सारे एलिमेंट्स नहीं पॉप करेगा. जितना एलिमेंट पॉप इज फॉर यू टू रिमूव वन एलिमेंट एट अ टाइम. जितने बार फंक्शंस कॉल करोगे उसके अकॉर्डिंगली पॉप होगा. Avinash, if it's clear. I hope it's clear. हाँ okay चलो ठीक है फटाफट let me हाँ do the गाइस थोड़ा time सबको bomb. ही थोड़ा रेस्पॉन्स करो तो उसको समझ में आएगा. लाइक सबको एटलीस्ट थम्स अप दे दो सबको. I am reading the chat from another device. ठीक है अच्छा okay. Let me go with time complexity वाला चीज I will explain quickly. Void हाँ push function time complexity. Are you people aware with time complexity वाला thing? I hope you all understand that. Message very not good understanding. कोई बात नहीं, not an issue. I will explain it over here. जैसे ये तुम्हारा void push function है ठीक है. इधर पे only one statement is being executed. Every time you call this function, either if statement gets executed or else gets executed. अगर इसके बदले कोई for loop होता या this हाँ that is what I'm telling. तो अगर यहाँ पे जैसे कोई फॉर लूप होता या कुछ होता तो वो बिग ऑफ एन में जाता है. एन क्या होगा तुम्हारा साइज होगा. बट सिंस यहाँ पे ओनली सिंगल स्टेटमेंट है सो इट इज रनिंग ओनली वंस सो इट इज टेकिंग कांस्टेंट टाइम. big O of 1 we call it मतलब big O of 1 constant को we often represent it as big O of 1. So this is why push function has got your big O of 1 complexity that is constant. You
क्योंकि there is only one statement that you are executing every time you are calling this function, push function. ठीक है. Similarly for pop also एक ही statement execute हो रहा है, या तो if वाला या तो else वाला. तो उसके लिए भी again you have got big of one, क्योंकि you are not running the function again and again ना. अगर आप एक बार फंक्शन कॉल करें तो वो बस उसका क्या काम है, एक लाइन ऑफ कोड है, उसको एग्जीक्यूट करना है. दैट इज इफ कंडीशन. So that is why it is constant. Similarly for peak also, if or else condition, एक ही statement इसको execute करना है, check करना है. So again one. Is empty is also similar case. Again one, क्योंकि सिर्फ एक line of statement को ही consider करना होता है code को. Either it's if or else वाला statement. So that is about time complexity. Anyone having any questions? Okay, समझा. बाकी सब जल्दी रिस्पॉन्स करो. thumbs up. Okay. So that is all about your implementation. तो अच्छा, okay, so are you all clear with the functions of stack and उसका implementation, time complexity? अभी तक सब clear? Okay, got it. Next, ये snippet मैंने ऐड किया हुआ है, check कर लेना. I will share the PPT with you all. So okay, we are done with like your stack. So I will just jump to problem solving, questions related to it. So my first question is, I will expect answers from you. Okay, I am expecting answers from you because that is what. So okay, my first question is, reverse the elements of a stack. Anyone, any approach, कुछ भी दिमाग में आए, कैसे होगा, क्या होगा? अनम्यूट करके भी बोल सकते हो. रिवर्स क्या करना है, जैसे तुम स्टैक में एलिमेंट्स डाले उसे अभी हम लोग क्या डालेंगे, हम लोग को क्या डाले, हम लोग का स्टैक क्या है, हाँ. सो स्टैक में भी क्या क्या एलिमेंट्स है, 45 है, 39, 23, 72, 11. 11 इज बीइंग योर टॉप मोस्ट, मतलब टॉप नीचे से ऊपर जाना, टॉप टू बॉटम. ये 45 तुम्हारा लास्ट एलिमेंट है, बट यही चीज हम चाहते हैं कि स्टैक में रिवर्स ऑर्डर में स्टोर हो. दैट इज मेरा अब 11 होना चाहिए टॉप, सॉरी 45 होना चाहिए टॉप मोस्ट एलिमेंट, उसके नीचे होना चाहिए 39, उसके नीचे 23, 72, वैसे. आई होप यू अंडरस्टैंड रिवर्स. हाँ, एनीवन हैविंग एनी अप्रोच? अनम्यूट करके बोलो. एम्प्टी स्टैक बना के फर्स्ट स्टैक से पॉप कर. हाँ, वेरी गुड, दैट वाज आंसर आई वाज एक्सपेक्टिंग. परफेक्ट, सही. सो ये वाला चीज आई एम जो सेट लेट मी क्रिएट वन मोर स्टैक. तो हम लोग एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, माय स्टैक से s1. फिर I will run a loop. Why will I run a loop? क्योंकि मैंने जितना भी पुश किया एलिमेंट्स, मेरे को सारे एलिमेंट्स दूसरे स्टैक में पुश करना है. तो what will I do is, while मेरा कंडीशन क्या होना चाहिए, anyone, any idea? प्लीज रीड मत करना, स्क्रीन में ऑलरेडी विजिबल है. स्टिल like how will I stop, मेरा while loop stop होने का कंडीशन क्या होना चाहिए? रिया थोड़ा चैट बॉक्स भी देख लेना कि और कुछ क्वेश्चंस मिस जा रहा है कि नहीं. लाइक अभी क्वेश्चन वो लोग पूछे थे तो देख लेना थोड़ा. ओके, श्योर. अगर किसी स्पेसिफिक, अच्छा वेट होल्ड ऑन, अगर किसी स्पेसिफिक पोजीशन से रिमूव करना हुआ उसके लिए कोई नहीं, यही है स्टैक. फिर तुम वो स्टैक का मीनिंग को वो करोगे, डीमीन.
स्टैक का काम ही वो है कि आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर से ही उसमें ऐड कर सकते हो और रिमूव उसके टॉप मोस्ट से कर सकते हो, ऐसे बीच से तुम एलिमेंट्स को नहीं एक्सेस कर सकते हो. दैट इज अबाउट स्टैक. देन why in new stack, न्यू स्टैक क्यों, मेरा ओल्ड स्टैक है. अच्छा वेट, बिफोर आई गो टू दैट, अविनाश, आई होप आई एम क्लियर विद माय आंसर. अच्छा ओके. Okay, I'm getting back to the question, reverse वाला. ठीक है. So अभी मेरे को reverse करना है elements. Find the elements in old stack. हाँ, so for that, which function can you call? नहीं, pop is for you to just remove. वो while loop से बाहर निकलने के लिए एक particular condition चाहिए होगा, right? So for that you check not is empty. Okay, क्या नाम है function का? S. जो तुम्हारा ये old stack था, उसमें जब तक elements होगा, तब तक you will keep popping. You will pop, तो जैसे s dot pop कॉल हुआ, s का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा पॉप होगा? 11. फिर उसको तुम s1 में पुश करोगे, तो दैट विल बी द लास्ट एलिमेंट. अगेन व्हेन यू पॉप, ये मतलब ये कब तक चलते रहेगा? जब तक तुम्हारा फर्स्ट वाला जो स्टैक है s में, जिसमें तुमने सारे एलिमेंट्स को स्टोर किया था, वो तब तक रन करेगा जब तक ये तुम्हारा एम्प्टी ना हो जाए फर्स्ट वाला स्टैक. टिल देन इट विल रन. That is why is empty क्या है, तुम्हारा चेक कर रहा है. जैसे स्टैक एम्प्टी हुआ, हाँ सारा एलिमेंट्स पॉप हो चुका है तुम्हारे ओल्ड स्टैक से और वो न्यू स्टैक में पुश हो चुका है. नाउ अगर मान लो मेरे को चेक करना है कि मेरा रिवर्स हुआ है कि नहीं, सी आउट, आई विल जस्ट प्रिंट s1 डॉट t. कैन एनीवन टेल क्या आएगा मेरे आंसर्स मिलेगा? t. अच्छा ये while loop क्लियर हुआ ना? 45. Yes, you are. Let me just run at once. 45. You are getting 45. You all get the concept now. What I did. What is this while loop doing? Yes. बाकी सब. Anyone having any question? Read out. It's very simple. Normal मैंने while loop चलाया, एक जो old stack था उससे elements pop किया और फिर उसको अपने न्यू स्टैक में पुश कर दिया, तो वो जिस ऑर्डर में पॉप हुआ उसमें रिवर्स ऑर्डर में स्टोर हो गया, बिकॉज जो टॉप मोस्ट एलिमेंट तुमने पॉप किया है तुम्हारे न्यू एरे का, वो फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, तो उस अकॉर्डिंगली वो रिवर्स हो जाएगा. ओके, आई होप आई. नाउ next question is for you to check for valid. For this I will go to your lead code. This question is from your lead code. Valid parenthesis. ठीक है, सबको एक बार क्वेश्चन रीड करो एंड एक बार ट्राई आउट. जस्ट वंस रीड, गो थ्रू द क्वेश्चन. आई विल अगेन एक्सप्लेन यू, बट एक बार पहले खुद रीड करो और मेरे को जस्ट एक बार बताओ क्या समझा इस क्वेश्चन से. व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड, क्या क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है. आई एम गिविंग यू 1 minute. ट्राई इट आउट वंस. जस्ट एक बार मेरे को बस क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या रीड कर रहा है. सॉल्यूशन, इवन इफ यू गेट द सॉल्यूशन दैट्स ग्रेट, but I would want you all to once try what the question is asking for. Once you read it, please do response now, so that I can. I just asked you to read the question. अभी मैंने screen share किया, या फिर you all log into your LeetCode profile. You can also go to the question directly.
एक बार बस क्वेश्चन रीड करो और मेरे को बताओ क्या समझा क्वेश्चन से, क्या क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, व्हाट इज द क्वेश्चन ट्राइंग टू आस्क यू. आयुष, ओके आयुष, you want to say? एक स्ट्रिंग है उसमें ब्रैकेट्स दोनों ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स होने चाहिए, दोनों होने चाहिए तभी ट्रू रिटर्न करेगा. Also और भी है थोड़ा और ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, you are missing out something. जस्ट एक बार रीड करो, यू विल गेट इट. हाँ ये सही बोला तुमने. फॉर एवरी ओपनिंग ब्रैकेट यू नीड अ क्लोजिंग ब्रैकेट. Also there is one thing I am telling. Also there is one thing कि similar होना चाहिए. Like if this is your opening bracket, this has to be the closing one. For every opening bracket, there must be a closing bracket, and it should be corresponding. Like say for example, यहाँ पे देखो मेरे स्क्रीन में ये वाला अगर string है तुम्हारा, तो it is not valid क्योंकि ये corresponding नहीं है. आप बोल सकते हो कि हाँ for every opening bracket I am having a closing bracket. Say जैसे ये वाला है तुम्हारा, इसके लिए आई हैव दिस क्लोजिंग ब्रैकेट. ऑल्सो फॉर दिस दिस वाला ब्रैकेट आई होप यू ऑल गेट. ये वाला ब्रैकेट के लिए आई हैव दिस क्लोजिंग ब्रैकेट. बट प्रॉब्लम क्या है कि इट इज नॉट कोरेस्पॉन्डिंग. ये वैलिड होता, ये वैलिड होता अगर मेरा स्ट्रिंग कुछ ऐसा दिखता है. इसके लिए दिस इज मतलब यही है. क्वेश्चन क्या है समझा तुम लोगों को? वेरी बेसिक इजी क्वेश्चन. फॉर एवरी ओपनिंग ब्रैकेट देयर शुड बी अ सिमिलर क्लोजिंग ब्रैकेट. वही कोरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए, ऑर्डर ऐसे मेंटेन रहना चाहिए. लाइक नेक्स्ट एलिमेंट का क्लोजिंग होना चाहिए. एवरीवन गॉट द क्वेश्चन? सबने रीड कर लिया? रिस्पांस बाकी सब anyone want to try out कोई अप्रोच आ रहा हो दिमाग में कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन? anyone कुछ भी आया हो दिमाग? हाँ ना बोल दो. ओके चलो आई होप सबने ट्राई एटलीस्ट किया होगा बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी क्वेश्चन करो तो मैं पहले कोड ही लिख दूँ. क्वेश्चन क्या है ये सबको क्लियर हो गया? आई एम अगेन टेलिंग यही है. फॉर एवरी सिमिलर ओपनिंग ब्रैकेट यू नीड अ सिमिलर क्लोजिंग ब्रैकेट. इट शुड बी कोरेस्पॉन्डिंग, ऐसे आगे पीछे नहीं होना चाहिए. दैट इज द ओनली थिंग दैट वी वांट. अगर इफ वी फाइंड एनी invalid string, that is मान लो you have only closing brackets in your string, then it's invalid, false return करना है. और अगर सारे opening brackets के लिए closing bracket है, सही order में है, तो it will be true. सही है, valid है parenthesis. For that let me run. मेरे को for loop चलाना ही होगा क्योंकि मेरे को overall string तो देखना ही होगा. Also, I will use stack. Stack में we will store characters. Here I can वो last time जो था जो मैंने दिखाया वो implementation था, but यहाँ तुम्हारे प्लेटफॉर्म्स में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यू ऑलरेडी हैव दी इनबिल्ट फंक्शन लाइक जो इज एम्प्टी है, पुश है, पॉप है, वो ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है. यू कैन सिंपली कॉल इट लाइक इट ओवर हियर. यहाँ पे आई डोंट नीड टू राइट दैट होल स्टैक का फंक्शंस अगेन, दैट इज पुश, पॉप, इज एम्प्टी, ये सब यू कैन सिंपली कॉल दैट. इनबिल्ट होता है. इफ
I'm writing the code first, then I will explain it to you. Can anyone tell मैंने ये condition में क्या करने का कोशिश किया? चलो, रिया तुम्हारा माइक ऑन है ना? हाँ हाँ ठीक है। Just give me a second. We can start. After my temporary elements and the people to this.
So I will start. Let me start it out. Can anyone tell there is some syntax error, I guess? S dot para. S is the string. Para. This is correct. No member name. आप तो यहाँ पर ST यूज कर रहे थे ना? नहीं, st तो तुम्हारा स्टैक है, उसमें स्टोर हो रहा है। मैं यहाँ पे जो तुम्हारा स्ट्रिंग s है उसका कैरेक्टर्स को एक्सेस करने का कोशिश कर रहा है। Since I code in आप S लूप dot के add बाद होगा सब। s dot add because I don't know in C. No, I don't think so. ये बोल रहा हूँ। मेरे को स्ट्रिंग का ओके हाँ ठीक है चलो थैंक यू अगेन सेम ओह माय गॉड I actually code in Java so I am facing this दुनिया भर का syntax error अच्छा ठीक है एक बार syntax के लिए इग्नोर करो मैं तुम लोग को लॉजिक समझाती हूँ अच्छा you people are comfortable with me showing my Java code लॉजिक वही रहेगा बस लैंग्वेज अलग है if you people say that नहीं तो मेरे को यहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ाना पड़ेगा बोलो भाई not a problem. So I will show you my Java code क्वेश्चन मतलब समझना क्या किया है मैंने ठीक है हाँ सेम चीज ही है आई एम जस्ट फेसिंग दैट सिंटैक्स इशू मैं तुम लोग को वही वाला समझा देती देन आई विल रन दिस सो ओके जस्ट लिसन व्हाट आई एम डूइंग इन दिस कोड व्हाट इज लाइक जो तुम्हारा टेस्ट केस say this is our we all know ये true है we have one opening and closing so okay we are running a loop for loop string को access करना है हर element को line wise you will see ठीक है तो पहले I have taken char x is storing your elements that is your character as of now it will मेरे स्क्रीन में विजिबल है हाँ इट्स विजिबल आई कैन सी आई होप यू ऑल कैन सी एज वेल रिस्पॉन्स हाँ तो ये वाला है तो फर्स्ट वी विल गेट दिस ओपनिंग ब्रैकेट राइट char x अभी वो स्टोर कर रहा है नेक्स्ट अभी वी विल चेक द कंडीशन इफ स्टेटमेंट में क्या चेक हो रहा है इज द स्टैक एम्प्टी Yes, I have not pushed any element. Wait, I am not. Sorry, wait. Yes, push. This will be inside else. So since अभी stack में कोई element है नहीं, stack is empty and x is some
एनीवन? क्लोजिंग ब्रैकेट तो नहीं है, एक्स में अभी हम लोग का ओपनिंग ब्रैकेट होल्ड किया हुआ है, स्टोर्ड है, तो ये वाला कंडीशन इज नॉट ट्रू. वी विल गेट इनटू एल्स. एल्स में गया, वी विल चेक, ये सब कंडीशंस चेक होगा. इफ वाला is the condition, if is any of the conditions satisfying, anyone? देखो x they are checking for closing bracket but we have an opening bracket in x store. तो कोई कंडीशन नहीं सेटिस्फाई किया, सिंपली स्टैक में पुश हो चुका है तुम्हारा ये ओपनिंग ब्रैकेट एक को. नेक्स्ट अगेन i is equal to 1, x में तुम्हारा स्टोर हुआ now a closing bracket because अभी 1 वाले पोजीशन में you have a closing bracket, right? So we will go here, stack is empty, no. We will check, is x equal to this? Yes. Okay, I should get this. एक मिनट रुको, मेरे को राइट करने दो. नहीं स्टैक इज, हाँ ठीक ही तो था, स्टैक इज एम्प्टी. नहीं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स. व्हाई फॉल्स? बिकॉज हम लोग अभी ये वाला एलिमेंट पुश किए थे, राइट? एक ओपनिंग ब्रैकेट. तो इफ वाले कंडीशन में नहीं जाएगा, इट विल गो इन एल्स. इट विल सर्च फॉर अ क्लोजिंग ब्रैकेट व्हिच इज अभी x में तुम्हारा क्लोजिंग ब्रैकेट स्टोर था. एंड स्टैक का पीक में क्या था तुम्हारा? ये, क्योंकि हम लोग लास्ट इसी वाले एलिमेंट को पुश किए थे, राइट? तो फॉर दिस ये वाला पॉप हो गया, क्योंकि आई हैव गॉट अ पेयर. मेरे को एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है, अब आई वांट कि मेरे को एक उसका ओपनिंग ब्रैकेट भी अवेलेबल रहे, बिकॉज वो स्ट्रिंग सही तभी होगा जब आई हैव वन क्लोजिंग ब्रैकेट फॉर मतलब जो भी ओपनिंग. हाँ, जैसे एक तुम्हारे स्ट्रिंग में आया, लाइक तुम्हारे एक्स में आया एक क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है? तो यू वुड वांट कि मेरे पास पहले से एक ओपनिंग ब्रैकेट हो सिमिलर, राइट? तभी वो स्ट्रिंग वैलिड होगा. तो फॉर दैट इफ यू गेट अ वैलिड पेयर, तो तुम स्टैक को एम्प्टी कर दो कि हाँ ये एक जो पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है ये सही है, तो इसको और नहीं कंसिडर करना है. नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट क्या मतलब? ये वाला एक कंडीशन, बट ये छोटा सा एग्जांपल है बिकॉज तो सिलेक्ट ठीक होगा नहीं. तो फॉर दिस टाइम अभी स्टैक से ये पॉप हो गया, नाउ योर स्टैक इज एम्प्टी. नेक्स्ट आई होगा तुम्हारा 1 नो 2, बट साइज एक्सीड कर जाएगा, तो वी विल गेट आउट ऑफ दिस लूप. नाउ वी विल चेक whether the stack is empty or not. Was my stack empty? क्या मैंने अपना stack empty कर पाया था? हाँ, because मेरे को जब एक closing bracket मिला था तो ये वाला condition satisfy हुआ था. हाँ, ये वाला, क्योंकि हम लोगों ने initially तो एक closing bracket push किया था, फिर next we got one closing bracket जिसके लिए ये वाला condition satisfy हो रहा है. because देखो x में क्या store हुआ? तुम्हारा closing bracket, और मेरे स्टैक के पीक में जो हम लास्ट पुश किए थे वो एक ओपनिंग ब्रैकेट ही था, तो उसके लिए वो एक पेयर, तुमको एक वैलिड पेयर मिल गया कि हाँ मेरे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए एक ओपन ब्रैकेट भी है. सो फॉर दैट योर स्टैक बिकम्स, मतलब पॉप कर देता है और फिर स्टैक एम्प्टी हो जाता है. इसमें मेनली क्या है, अगर तुम्हारा स्टैक एम्प्टी हो जा रहा है देन इट्स वैलिड. ये तुमको करेक्ट, मतलब क्योंकि तुम स्टैक में पुश वही सारे एलिमेंट्स कर रहे हो, यू आर ओनली पुशिंग द ओपनिंग ब्रैकेट्स इन योर स्टैक. देखो एल्स में कब घुस रहा है? जब तुम्हारा वेट होगा, हाँ एल्स में आ रहे हो तभी पुश हो रहा है. इफ वाले कंडीशन में क्या चेक हो रहा है तुम्हारा कि अगर एक्स तुम्हारा क्लोजिंग ब्रैकेट है या ये इनमें से कोई भी है. से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एक स्ट्रिंग होता ओनली अ क्लोजिंग ब्रैकेट, तो आई गेस इस वाले कंडीशन में फंस जाता. क्यों फंस जाता? क्योंकि अभी तक हमने तो एक ही बार लूप चलाया जिसमें से मेरा स्टैक में हमने कुछ पुश नहीं किया, क्योंकि एल्स वाले कंडीशन में तो घुसे नहीं अभी तक एक बार भी, और अभी तक तुम इधर इफ में ही हो, इधर भी यू विल चेक. इस वाले कंडीशन में फंस जाएगा बिकॉज स्टैक इज एम्प्टी एंड तुम्हारे एक्स में फर्स्ट एलिमेंट ही क्या आ गया? अ क्लोजिंग ब्रैकेट, व्हिच इज नॉट ट्रू, राइट? इसका तुम्हारे पास पेयर ही नहीं है, तो इट विल रिटर्न फॉल्स. फॉल्स रिटर्न स्टेटमेंट तो सिंपली लूप से बाहर निकल जाएगा और आगे कुछ चेक नहीं होगा. मेनली यही है. तो हम अपने स्टैक में सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट्स को डाल रहे हैं जब भी मेरे को कोई ओपनिंग, सुनो मेरा बात देखना, सुनने का कोशिश करो और समझो.
लाइक हम अपने स्टैक में पुश वही एलिमेंट्स करें जो ओपनिंग ब्रैकेट से, ठीक है. Whenever I'm getting a closing bracket, I am searching for the opening bracket that should be available in the stack as the peak value. तभी वो एक valid pair बनेगा and I will pop it out. That is the key structure of this overall code. Anyone having any question? मैं तुमको Java वाला run करके दिखा दूँगी. See, in Java also we have this same code. There I am facing some syntax issue. I hope you all will adjust थोड़ा सा. See, same thing. Character X, first element को लिया. फिर अगर stack empty है और you are getting सीधा पहले ही तुमको मिल गया closing bracket, so it will return false. बाहर निकल जाओगे. और अगर तुमको अच्छा ओके one more condition, अच्छा मैंने वहाँ पे एक भूल किया है. हाँ ठीक है, I will correct that. Else if you are getting an opening bracket तो simply stack में push कर देते हो. और अगर तुम्हारा मेनली तुमको चेक करना होता है क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए कि is there any valid opening bracket in your stack available or not. तभी वो satisfy करेगा कि हाँ जैसे you will get a valid pair. I don't know whether it's clear to you all. एक बार मेरे को please बोलना. Any Ditya is able to know. बाकी सब Ayush is also there. Aditya, okay. Oh, I don't know. Abhilash is also okay. I think it's clear. So anyone, अच्छा ये वाला मैं Java वाला run करके दिखा देती हूँ. See, all the test cases are getting passed. एक बार check out. It's the same code. मेरा CPP में syntax error आ रहा है. Do not think I have changed the logic or something like that. It's the same thing. I hope you all understood. That is what I wanted to explain. So should we go to the next question? Or anyone having any question from this one? Is okay with it. बाकी सब anyone having any question from this one कुछ नहीं clear हुआ? Okay, so I'm moving on to the next question. I hope I was clear with it. Next is your mid stack. It's a good question, stack related. एक बार question read करो. I'm giving you all 1 minute. Everyone, once you all are done, मेरे को एक बार ping करना. Give me thumbs up or just say something. Unmute yourself. क्वेश्चन रीड कर लो, मेरे को रिस्पॉन्स करना. कर लिया सबने और स्टिल रीडिंग. आयुष क्या समझा आयुष क्वेश्चन से? व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग? क्वेश्चन इज आस्किंग कि एक स्टैक बनाना है, पुश फंक्शन पॉप और टॉप, पुश और पॉप को इंप्लीमेंट करना है, और एक फंक्शन आना है वो मिनिमम एलिमेंट जो है स्टैक का बताएगा, करंट मिनिमम एलिमेंट. हाँ परफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो वेरी वेल सेड. मैं फिर से समझा दे रही हूँ. इसमें यही है, यू नीड टू लाइक नॉर्मल स्टैक को जैसे एक्सेस करते हो, दैट इज द थिंग.
push element, pop element, top element. It's just one extra thing that you need to keep track of is the minimum element. तुम्हारे stack में जो भी सबसे छोटा value हो उसको तुमको store करके रखना है एक variable में से. So मेरे को एक since I will have to store the min element, I will declare very private कर देते हैं because हमको सिर्फ access करना है. Int min, which is int underscore underscore. Also एक stack declare कर लेते हैं because उसी में हम लोग store करेंगे elements, right? Integer type st. Because I have initialized min here only, तो constructor में कुछ नहीं करना होगा. push का normal function लिख देते हैं. stack में normal जैसे push होता है st dot push the value. But इसमें simply pushing will not do. I will also have to keep track of the minimum element, right? तो उसके लिए first okay wait. min value का भी track रखना है, right? तो एक बार तुम give okay this text ठीक है बाद में I will see. So for that, since I want to keep track of the minimum element, I will check the current value. The current value is less than min. min में अभी सबसे maximum integer value stored है. Okay, declare कर दिया so that हम अपने stack का minimum value को hold कर पाए. This is so. What you will do is मैं कोड पहले लिख लेती हूँ फिर I will explain it to you. Update min is equal to push. Then push the value is what? Value is the minimum values which are not zero. And settings of my screen. If I push the elements, we will push them. As when push. It's correct.
This should be done. Okay, let me quickly explain it to you. Now I think it should work. Let me do the dry run. I will explain it side by side. Okay. So in this min stack, what you are supposed to do, you need to keep track of the minimum value, right? So अगर simply सोचा जाए, जैसे मान लो मेरे को element, ये example नहीं देखना, हाँ, I am taking an element say 1, I am pushing it, वैल्यू अभी तुम्हारा वैल क्या है 1 है, राइट? और मिन में क्या स्टोर है? मैक्सिमम नंबर, इंटीजर का मैक्सिमम, दैट इज बिग नंबर, इंटीजर का मैक्स वैल्यू जो डिफाइंड होता है इनबिल्ट। अच्छा, ओके, आई एम ऑडिबल ना? Yes, yes, you are audible. Okay. So that is what. So now you see val1 that I have taken is less than the min, because min is storing the maximum integer value. So you have pushed the min value that is currently, what was the value of the min? Maximum integer value. You have stored that. Then you have updated the min value, and then you need to this wait. Here you will push. No, value. Sorry. Correct. Wait, let me. I'm using that सिंपल पॉप नहीं यूज होता है, टॉप होता है। नहीं, टॉप इज, कैन एनीवन टेल सिंटैक्स अगेन? आई एम फेसिंग सम इशू। लॉजिक समझो, आई एम एक्सप्लेनिंग द लॉजिक, फिर अगेन आई विल शो यू माय जावा कोड। Or can anyone tell is in CPP if we are using stack library, which function is? Before I get into that, let me just explain what I am trying to do. For pushing elements, why I am pushing twice? Say if I get a minimum element, I am also in this code, I am also keeping track of the last previous element. That is, I am keeping the track of the minimum element and the second most minimum element. That is because, say if we want to pop an element, the first element that we pop is the minimum most element, right? So we might then simply pop it, but again, say if it's the minimum value, then we will lose the track, because अगर आप pop कर दोगे वो element को, तो minimum तो definitely वो रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसको वो तो stack में है ही नहीं, तो min को update करना होगा। बट अब तुम अपडेट करने जाओगे तो यू कैन नॉट अश्योर ना कि जो लास्ट सेकंड एलिमेंट तुमने ऐड किया था अपने स्टैक में, वो वही है तुम्हारा नेक्स्ट मिनिमम। इट इज पॉसिबल कि जो नीचे वाला एलिमेंट्स है जो पहले तुमने पुश किया था उससे भी पहले, वो मिनिमम हो। तो फॉर दैट वी नीड टू कीप ट्रैक। इसीलिए जब भी आई एम गेटिंग द मिनिमम वैल्यू, आई एम पुशिंग टू एलिमेंट्स। एक तो जो तुम्हारा मिनिमम है, जो मतलब प्रीवियस मिनिमम एलिमेंट था, वो तो पुश कर ही रहा है। फिर मिन का वैल्यू को हमने अपडेट कर दिया न्यू वैल्यू से, जो तुमको नया मिनिमम वैल्यू मिला है। देन उसके बाद उसको भी पुश कर दिया मैंने। सो इधर पे आई होप इट्स क्लियर मैंने 2 बार क्यों पुश किया व्हेनेवर आई एम गेटिंग अ मिनिमम वैल्यू, बिकॉज आई जस्ट वांट टू कीप द ट्रैक ऑफ द लास्ट मिनिमम वैल्यू एज वेल। क्योंकि व्हेन आई से कॉल द फंक्शन पॉप, if the condition says if top is equal to min, means the topmost element of the stack is min, so I cannot directly just pop it out, because I need to keep track of the minimum element. For that, I am again like holding the topmost element, that was the minimum element. I am holding it in the variable x. Then I am updating the min value with the second most minimum element that we had. Why will the stack have its second most minimum element as the like वो okay, जो तुम्हारा उसके नीचे वाला एलिमेंट होगा, जैसे जो टॉप मोस्ट एलिमेंट वो मिनिमम है, राइट?
और उसके नीचे जब हम लोग पुश कर रहे थे हम लोग ट्रैक रखे थे कि उससे एक तो बड़ा और ओवरऑल स्टैक में छोटा वो वाला एलिमेंट होगा, राइट? तो इसीलिए देन व्हेन वंस यू पॉप द मिनिमम एलिमेंट उसके बाद यू गेट एक्सेस टू द सेकंड टू द नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट नाउ दैट इज अवेलेबल इन द स्टैक। उसको आपने अपडेट किया मिन में, फिर अगेन यू पॉप्ड इट आउट। पॉप क्यों किया? क्योंकि स्टैक में हम लोग हमेशा 2 एलिमेंट पुश कर रहे थे, राइट? जब भी वी वर फाइंडिंग आउट द मिनिमम वैल्यू, लाइक जो भी वैल्यू नया वैल्यू ऐड हो रहा है अगर वो तुम्हारा जो प्रीवियस मिनिमम वैल्यू था उससे भी छोटा है तो उसके लिए वी व्हाट वी वर डूइंग, वी वर पुशिंग एलिमेंट्स ट्वाइस। एक बार तो वो मिनिमम एलिमेंट तो डाला ही डाला, ऊपर से जो नया वैल्यू आया उसको भी डाल दिया और जो तुम्हारा मिनिमम वैल्यू था उसको अपडेट कर दिया। वही जब पॉप करते टाइम अगर मान लो जो एलिमेंट तुम पॉप कर रहे हो वही मिनिमम है तो उसको उसके लिए तुमको फिर जो मिनिमम एलिमेंट है उसको भी तो अपडेट करना होगा, राइट? तो इसीलिए जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको हमने पॉप कर दिया बिकॉज उसका तो कोई काम नहीं है। फिर उसके बाद हमने जो तुम्हारा अच्छा व्याय एम आई स्टोरिंग इट इन इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आई जस्ट वांट टू पॉप इट। मैंने उसको रिमूव कर दिया अपने स्टैक से। ओके वेट, नहीं आई एम होल्डिंग द टॉप मोस्ट, नो नो यू डोंट हैव टू पॉप कर देना। फिर जो तुम्हारा मिनिमम एलिमेंट है वो अपडेट हो जाएगा जो तुमने तुम्हारा स्टैक का नेक्स्ट पीक मोस्ट वैल्यू है बिकॉज जो पॉप टॉप वैल्यू है वो तो तुमने पॉप कर दिया, नेक्स्ट वाला पीक वाला वैल्यू होल्ड होगा मिन में, फिर उसको भी तुम पॉप कर दोगे बिकॉज तुमने मिन में स्टोर कर चुका है जो तुम्हारा मिनिमम नेक्स्ट मिन था। उसके बाद दैट इज हाउ इट इज। और अगर तुम्हारा टॉप मोस्ट एलिमेंट मिन नहीं है तो फिर तो फ्री, यू आर फ्री टू पॉप इट आउट बिकॉज उसका ट्रैक तुमको रखने का दरकार नहीं है। और फिर उसके बाद दिस इज टॉप सिंपल स्टैक, जैसे एक्सेस करते पीक वैल्यू रिटर्न्स और गेट मिन इज तुम्हारा रिटर्निंग द मिनिमम वैल्यू। एनीवन हैविंग एनी डाउट? कुछ नहीं समझ आया? आई डोंट नो वेदर आई वाज क्लियर। कोई क्वेश्चन से अब बहुत हो गया सब कुछ, फील फ्री एकदम पूछ लो, आई वोंट माइंड। सेकंड लास्ट एलिमेंट का चीज और एक और एक्सप्लेन प्लीज। सेकंड देखो जैसे मान लो एक स्टैक लिया तुमने, ठीक है, उसमें तुमने पुश किया 5 4 फिर 5 आया, ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट तुमने अच्छा ओके फर्स्ट एलिमेंट क्या है तुमने पुश किया है 5, ठीक है, तो मिनिमम अपडेट हो जाएगा क्योंकि स्टैक में अभी मिनिमम मोस्ट एलिमेंट क्या है तुम्हारा 5, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट अगेन मान लो तुम पुश कर रहे हो, व्हाट यू आर पुशिंग 4, अब तुमको 4 आया तो यू सी कि जो 4 का वैल्यू है इज लेस देन इक्वल टू मिन, और क्योंकि मिन में तो अभी तुम्हारा 5 था तो उसको तुम तो तुम्हारा 5 था तो तुम क्या करोगे स्टैक में तुम पहले मिन का वैल्यू, मिन अभी क्या था 5 था, 5 को पुश कर देना और फिर मिन का वैल्यू को अपडेट कर देना। मिन अभी क्या हो जाएगा तुम्हारा लेटेस्ट वैल्यू 4 जो आ रहा था, मिन अपडेट हो गया। स्टैक में अभी तुम्हारा क्या है 5 फिर से 5 फिर 4, 2 बार क्यों पुश किया, मैं आ रही हूँ वहां तक। फिर उसके बाद ये तुम्हारा ये हाँ 4 पुश हो गया, मिन का वैल्यू भी अपडेट हो चुका है, ठीक है। नाउ से नेक्स्ट तुमने क्या पुश किया 5 दिया 4 दिया, फिर उसके बाद से तुमने 5 अब मान लो पॉप करना चाहते हो, ठीक है, तो अब जब तुम पॉप कर अभी तुम्हारे स्टैक में क्या होल्ड है 5, उसके ऊपर 5 और उसके ऊपर 4, राइट। फिर अब नाउ यू वांट टू पॉप द एलिमेंट्स, तो तुम अगर 4 को सिंपली ये सब ना करके ये सब हटा दो, सिर्फ पॉप कर दिए तो तुम्हारा पॉप तो हो जाएगा एलिमेंट, हाँ वो ठीक है, बट मिनिमम वैल्यू में अभी भी क्या स्टोर है 4। st डॉट पॉप क्या किया, तुम्हारा टॉप मोस्ट एलिमेंट जो स्टैक में था दैट वाज 4, वो तो पॉप हो गया, और जो मिनिमम वैल्यू है उसमें अभी भी 4 स्टोर्ड है, वो कहीं भी अपडेट नहीं हुआ है। तो अगर तुम बोलो यूजर को कि रिटर्न मी द मिनिमम वैल्यू, इट विल रिटर्न यू 4, बट इट इज नॉट ट्रू बिकॉज अब तो 4 तुम्हारे स्टैक में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि तुमने पॉप कर दिया था। अब तो तुम्हारे स्टैक में नेक्स्ट एलिमेंट वो स्टोर होना चाहिए था, दैट वाज उसके नीचे वाला क्या एलिमेंट 5 था,
तो अभी मिनिमम एलिमेंट क्या है तुम्हारे स्टैंडर्ड 5 ही है, बट वो तो अपडेट नहीं हुआ है, उसके लिए ही आई हैड टू डू ये वाला चीज। हमको दो कंसेक्यूटिव लाइक जब भी तुमको मिनिमम एलिमेंट मिले उस उससे बड़ा एलिमेंट जो तुम्हारा पहले तो मिनिमम एलिमेंट था उसके संग संग तुमको स्टोर करना होगा, जिससे तुम्हारा ट्रैक बना रहे। क्योंकि जब तुम मान लो मिनिमम टॉप मोस्ट एलिमेंट जो तुम्हारा था वही मिनिमम था, उसको अगर पॉप कर दिए तो तुमको मिनिमम को तो अपडेट करना होगा ना, उसका ट्रैक रखना होगा, राइट? तुम जैसे आई थिंक मैं यही एग्जाम्पल लेके करूँ। अच्छा वेट, मैं ना ये वाला एग्जाम्पल वी आर डूइंग द ड्राई रन टू ऑल विल अंडरस्टैंड। मींस दैट इनिशियलाइज हुआ है, ठीक है, देन वी आर पुशिंग एन एलिमेंट -2, अगेन पुश किया 0, अगेन पुश किया। अच्छा ओके, मिन का भी तो मेरे को बताना होगा, ठीक है। स्टैक में भी तुम्हारा सिंपली पुश हो रहा है, ठीक है। अभी क्या आया तुम्हारा -2 आया है, पुश वाला फंक्शन कॉल हुआ, इज -2 लेस देन मिन, इट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि अभी इनिशियली तुम्हारा क्या था, मिनिमम वैल्यू, इंटीजर मैक्सिमम सबसे बड़ा वैल्यू स्टोर करके रखा था मिनिमम, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, राइट? तो तुम पहले स्टैक में क्या करोगे, जो मिन में स्टोर था दैट इज योर दिस वैल्यू, उसको पुश कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट तुम मिन को अपडेट कर दो विद द करंट वैल्यू दैट इज -2। फिर इधर पे यू गो, इफ कंडीशन हो गया देन अगेन यू पुश इन योर स्टैक -2। तो अभी तुम्हारे करेंटली स्टैक में क्या स्टोर है, मैक्सिमम वैल्यू दैट इज इंट मैक्स का जो भी इंटीजर वैल्यू था, फिर उसके ऊपर -2, ठीक है। अगेन यू आर पुशिंग 0 which is 0 less than min में क्या स्टोर था, -2, is 0 less than your -2, is it true? No, 0 is not less than -2, तो इस कंडीशन में नहीं जाएगा, you will simply push 0 in your stack। नेक्स्ट क्या आएगा तुम्हारा -3, ठीक है। now again you are pushing -3, is -3 less than -2? Yes, this condition is true। what you will do is you will push your minimum value in the stack। अभी minimum value क्या था, -2, you are pushing -2, updating the min value to -3, which was the val that we were passing now। तो minimum values का track, min का track updated है, then you will again you will push this value that is -3 पास कर रहे थे, राइट? तो अभी तुम्हारे स्टैक में क्या, ओ गॉड आई लॉस्ट द ट्रैक, मेरे को एक पेन पेपर चाहिए होगा। आर यू ऑल गेटिंग द वे आई एम एक्सप्लेनिंग? मेरे को ये बताओ। अरित्रा, यस, आयुष, ओके। तो आई होप मैंने ट्रैक रखा है, जैसे मिनिमम वैल्यू है ना, उससे भी उसको ऐड करने से पहले जो मिनिमम वैल्यू था उन दोनों का ट्रैक डबल, मतलब दोनों स्टोर करके रखे। जैसे अब जब मान लो अभी, हाँ ठीक है, मैंने पुश ये -3 भी पुश हो गया, ठीक है। मिन का वैल्यू अभी क्या है तुम्हारा -3, फिर उसके और हाँ स्टैक में -2 था, उसके हम लोग -2 को पुश किए, मिन का वैल्यू को अपडेट किया है विद -3, फिर अगेन हम लोग स्टैक में पुश कर दिया -3 को, ओके। फिर नेक्स्ट तुम्हारा है गेट मिन फंक्शन। तो व्हाट विल इट रिटर्न, गेट मिन इज कॉलिंग योर दिस फंक्शन मिन, एंड मिन में क्या था तुम्हारा -3, so you will get this -3 as your output। next again you are popping out, चलो वेरी गुड, पॉप वाला आ गया। so when you are popping is the topmost value, अभी स्टैक में topmost वैल्यू क्या है मेरा -3, राइट? एंड जो मिन का वैल्यू था वो भी -3 था, तो इट्स ट्रू कि topmost value is the minimum most value। तो अगर तुम सिंपली उसको पॉप कर दोगे तो you would want to update the minimum value to the previous minimum value, right? मतलब स्टैक में बाकी सारे जो एलिमेंट्स है उनमें कौन सा प्रीवियस, मतलब उनमें कौन सा सबसे मिनिमम मोस्ट एलिमेंट है उसका ट्रैक तुमको रखना होगा, राइट? तो इसीलिए व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर चेकिंग कि हाँ ये है तुम्हारा, हाँ जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वही मिनिमम मोस्ट एलिमेंट है, तो मेरे को अब उसका मिनिमम वैल्यू को भी अपडेट करना होगा विद द प्रीवियस मिनिमम वैल्यू दैट आई कैन गेट from the elements that are already available in the stack।
तो अभी तुम स्टैक को पॉप कर दोगे, तो -3 जो था टॉप मोस्ट एलिमेंट वो पॉप हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या था तुम्हारा स्टैक का पीक में? -3 के नीचे -2 था, राइट? तो -3 तो हम लोग पॉप कर चुके हैं। स्टैक का पीक में क्या है? -2। तो मिन का वैल्यू अपडेट हो गया विथ इक्वल्स -2। फिर हमने उसको भी पॉप कर दिया बिकॉज उसको अब रखने का कोई पॉइंट ही नहीं है। वी वर स्टोरिंग इट पेयर वाइज, पॉप करना था ना अल्टीमेटली एलिमेंट्स को। तो वी आर पॉपिंग एंड मिनिमम जो तुम्हारा वैल्यू था वो भी अपडेट हो गया विथ -2। नेक्स्ट इज, तो अभी तुम्हारे स्टैक में क्या होगा? -2 भी चला गया, -3 भी चला गया। नेक्स्ट जो था ये 0 रहेगा, नहीं 0 भी पॉप हो गया आई गेस, हाँ हो गया। फिर अगेन यू विल गेट द टॉप मोस्ट एलिमेंट। अभी तुम्हारा स्टैक खाली है क्योंकि सारा एलिमेंट्स पॉप हो चुका है। फिर अगेन यू विल गेट ट्राई टू एक्सेस द मिनिमम। तो मिनिमम में क्या होगा? मिनिमम -2 ही आएगा, क्योंकि वही था लास्ट मिनिमम एलिमेंट। क्योंकि हमने क्या क्या पुश किया था? -3, 0, -2, -3 तो पॉप हो गया था पॉप फंक्शन कॉल किया करने से। तो अब फिर नेक्स्ट मिनिमम मोस्ट एलिमेंट क्या है? -2 है, तो वो -2 होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। एनीवन, कुछ भी क्वेश्चन यू कैन आस्क। स्टिल डाउटफुल? आयुष, चरित्रा, बाकी सब you people are sure ना कि it's clear? अविनाश, देखो, do not hesitate, I will explain it again. Go on. Ashish also, okay, I hope I am clear then. मैं तुम लोग को देखो सेम कोड है, आई एम जस्ट फेसिंग दिस सिंटैक्स इशू, तो आई विल रन माय जावा कोड जो मैंने पहले से किया हुआ। आई एम शोइंग यू। इधर भी मैंने मिनिमम वेरिएबल लिया था, स्टोरिंग द मैक्सिमम। फिर यही वाला कंडीशन है तुम्हारा, एंड इट विल पुश अकॉर्डिंगली, देन यू विल पॉप। इधर पे वेरिएबल का नीड नहीं था बिकॉज पॉप फंक्शन यहाँ पे रिटर्न्स अ वैल्यू, एंड इन योर CPP के लैंग्वेज में they don't actually return, it's a void function, it's defined as void, so इसीलिए उधर पे I had to use an variable, and बाकी सब कुछ सेम है। I will run, it's running, so that is the code. Anyone, any question? Or should I keep this as the last question? I will discuss this one the next day, or do you people want me to continue? I have only one question left, but since we are already done with time, what is really response, guys. Anyone? Okay, देख के लग रहा है सबसे ज़्यादा। So I will keep it till here only today. Tomorrow I will take the next question. This is also a good question. I would suggest you all to try this one. It's good. You will actually understand. I will show you the brute force as well as the stack implementation, solving this question using stack as well. But I would want you all to try it out once. Ana kal, where we will discuss about it. It's a good question. You will actually understand how stack is beneficial for us, how it can help us in optimizing the code, and how it works. Anyone having any question? Or should we wrap up? गाइस कुछ क्वेश्चन आएगा तो पूछ लो। Anyone? Yeah, I think we don't have any question. So yeah, that's it for today's session.
I will end it if you all want. Okay, so I'm wrapping up. Huh? That is all for today. I hope whatever I taught was clear. If you all have any questions, you can ping me, you can text it. I will be more than happy to clear it out. I am extremely sorry that I couldn't run my CPP code due to syntax error. Baki, I hope it's clear. So we are ending the session. Thank you everyone for joining. गाइस तुम लोग मीटिंग लीव कर सकते हो, हो गया तो लीव कर दो। लीजा, रितोजा, तो लीव कर जाओ।